Hello and good morning. মই আতু জামিৰ আপোনাৰ চাই হৰ্ণবিল টিভি মৰ্নিং পাষ্টে আপোনাক সবকে স্বাগত কৰিছে এতিয়া আগে নিউজ পঢ়ব ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন দ ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ষ্টেচন বনাবলৈ এষ্টিমেট কষ্ট 283 crore লট কৰি গিনা আছে হলিবি এতিয়া তাক ৰিডেভেলপমেণ্ট কাম দ কৰি গিনা যা দেখি পা নাই এতিয়া নিমিতে পুৰাণা ৰেলৱে ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ দ বাঙাই গিনা নতুন বনাবলৈ কৰিয়া হি দেখি পাই আছে আইবি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট চাব ৰিপৰ্টাৰ আদুনা লগতে Dimapur Railway Station to World Class Station banabole August 6, 2023 Prime Minister Narendra Modi pra Amrit Bharat Station scheme laga niche de itu virtually Dimapur Railway Station de foundation stone lay kurigna ase kintu yate Dimapur de itu land acquisition issue taka nimite developmental work itu kurubule laga bi delay kurigna aha laga ase ek sal par kurigna ita 2 sal hobole laga ase hoile bi yate redevelopment work watu renovation or redevelopment work watu aste alag stage te compare kurigina bisi aste kwalaga muan dikhi pai ase January moinate Northeast Frontier Railway laga officials aro yate district administration bi meeting kurigina itu redevelopment work to hele to basic platform amenities kan laga redevelopment work to by March 2025 pra suru kurigina jabo kwalaga bi takan announce kurise kintu itia platform pitor de basic platform amenities improvement kora laga noile bi redevelopment kam kora laga ekta bi man dikhibo para nai kintu ekta changes dikhibo para la tu moila opor ekta fan notun fan he itu tagan install kurigina ase by March pa to suru kuru hoise hoile bi platform bitor de iku changes takala dikhi pa nai platform to alop tu sapa ase aro fan tu notun dalegina ita hawa alop tu man pai ase kintu alag dormitory to hoile bi noile bi passengers laga facilities itia iku improvement takala to man dikhi pa nai itu Prime Minister Narendra Modi pra 2023 te itu foundation stone lay kura laga Dimapur Railway Station itu redevelopment work kurubo nimite 283 crore estimate itu amount digina ase aji Hornbill TV gan yate railway station de aina ekta kam kurigina ja laga mon dikhi pa laga tu itia staff quarters apni itia screen te dikhai dia ase takan laga staff quarters itu purana staff quarters tu ele takan bangai digina itia notun banabo nimite itu ekta redevelopment work itu kura laga renovation nimite notun banabo nimite itia staff quarters takan itu bangai gina banabole laga hi itia ekta redevelopment work kurigina ahala mon dikhi pa ase officials pra kwa hisab te takan itu phase wise hisab te jabo koise phase 1 phase 2 hisab te takan itu jabole laga se hoile bi ita phase 1 laga kam hoile bi iku improve wa laga noile bi changes wa laga iku dikhi pa nai aro ekta one of the main yate platform bitor de Dimapur de platform duita hi ase aro platform ekta ase makara kuina takala tu aro moila bagal de taka laga itu platform 2 itia redevelopment work 283 crore laga itu estimate amount dia laga itia mola platform number 2 tebi itu rooftop tak bi dibo na paregina itia tak bi iku changes nai kiti laga gorte itu bera gor ekta rakina takina itu nistai rakina ase pani girisi bole noile bi san bisi ulaisi bole to passengers itu platform 2 de passengers kan digdar pana aha laga ase by March pa to itu redevelopment work to suru hobo goise iku itia tak bi iku hwanai main concern to tagan kwa hisab te tu yate Nagaland te yate Dimapur te main hurdle itu developmental work kam bon kura laga tu ekta land acquisition issues taka nimite itu kam bi kuru age jawo na para laga bi itu koigna aha laga se aro itia tak bi itu charcha tu solve na hoina takala se Northeast Frontier Railway pra tan itu kwa hisab te 58.34 acres takate around 60% to hele to itu encroach kurigina ase kuise itu railway mati laga aro takan pra kwa hisab te tu officials pra kwa hisab te tu 1500 itu unauthorized gor kan banaigna taka laga itia itu railway laga mati de 1500 unauthorized gor itu acquire kurigina ase to itia state government la sat phale prabi aro Northeast Frontier Railway laga sat phale prabi itu encroachment issue tu hoile to settle kurubule khoigna aha laga se itia tak bi itu sapa kuru na para nimite hi itia itu developmental kam dangor bi ani bole na parigna aha laga se kota tu hoile state government bra encroach kiman railway line de encroach kiman kurigna ase land pata digna takha nimite ita court case bi jaigna
taka laga ase state government la side phale pra bi clear cut itu dibo na pari kina itu encroachment du issue laga tu settle kuru na para nimite railway la side phale pra bi itu developmental work dangor kan expansion itu railway track bi expansion kuru na para laga itu itta tak bi hurdle ase kintu ita ekta starting kuribole laga tu tagan ita yate platform pitor de redevelopmental work kuri kina jawole laga bi ita tak bi muan ekta fan notun fan he dikhi kina aha laga ase to within 3 years pitor de itu world class railway station tu banabole laga itu ekta tagan timeline aro itu frame green ase hoile bi moga laga stage tu itia dimapur de tu kiman 3 years pitor de bi na hoboni ki moila hisab tu itia tak bi shuru hoy nai fan ekta dalise itu ase quarter ita bangai na takan kuribula ase aro kiman time lagibo moala neighboring states Assam lamding laga railway station apningan sai sabi passengers bi iman taka laga bi noi hoile bi itia lamding laga train station aro dimapur la train station sai se bole to iku compare kurule chance nai renovation kurigina ekdom ekta alak sundur taka labi muan itu dikhi pa nai kiman time lagibo aro itu he muan ruki ase aji nimide mane obo moi adenare with camera person Johnson for Hornbill TV Dimapur. Former Indian ambassador to Turkey Sanjay Pandapa concerns raised Krushe kude Turkey laga military pra Pakistan ke modot Korea issue opor de khota Korea homoy Pandapa junaishe ki itu ekta package ase kude Amir Khan saman ekta bikri kurile tade service bi include ase tai kushi ki tai Khan poila pra modot Korea ase itu conflict na lua age pra tai Khan hi ke modot Korea ase package hisab te Pandapa aro kushi ki Turkey laga itu do sabse dangor miscalculation ase jani kina thage she ki Pakistan itu kude aro kitya jula bole ase helping Pakistani military officials plan and coordinate drone attacks against Indian targets. What's your comment on that? Yeah, this is it's part of the package. I mean, when you sell a product, I mean, there is a service which is involved. So they were helping out. I mean, there's even before this conflict broke out, even before that, they were present and trying to assist them. This part of their contract, part of the package. You see, we should not read more into all this. The fact remains that Turkey, how it looks at India. I mean, it's a major strategic miscalculation for Turkey, knowing very well how and where these products are going to be used. I mean, Turkey has to see where it's, what is in its national interest. I mean, is it doing business with India or with Pakistan? I mean, so that is why I would rather call it a strategic miscalculation. But so far as drones and other things, military equipment are concerned, Turkey is into the business of marketing these products irrespective of the buyer. And Pakistan, of course, is a major buyer. MP Congress Chief Chitu Patwari pra ekta complaint file kurishe Madhya Pradesh daga Minister Kunwar Vijay Shah opor kuri tai Colonel Sofia Qureshi opor bia comment kuriya nimide tai junaishe ke Madhya Pradesh Minister Kunwar Vijay Shah opore file kurishe PM Modi pra desh tugure address kurigina army opor himmat digina salute kuriya homoy Madhya Pradesh daga ekta minister pra desh daga army officer opor de bishi bia khota kurishe kurishe Patwari pra sawal kurishe kile BJP chup thagi ase Juti 24 घंटा बिटोरे ताइगे सस्पेंड कुरिया कुइले ताइ खान विजय शाह पर FIR फाइल करबो सब पुलिस स्टेशन दे जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और उसकी रिसिप्ट हमने ली। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी, यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से
अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में देश की एकता और अखंडता के लिए भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएंगे। बिल्कुल हुई है। वो पुलिस मना कर रही वो पुलिस ने हमारे पास कापी है, दो भैया। पुलिस कह रही कि रोज नामची में बस लिखी गई एफआईआर नहीं हुई है अभी तक, कोई नहीं लगाई गई। फिर इसके अलावा भी कानून है। ऑपरेशन सिंदूर कारणे आर्म फोर्सेस कान की सॉलिडारिटी दिबोले कारणे देश जगह जगह अलग अलग नेशन वाइड कैंपेन तो जाई थगी ऐसे इतो निशना तिरंगा यात्रा तो गुवाहाटी एसएम देवी वेडनेसडे दिन दे थगिशे इतो लगा रैली दे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा लोगुदे अलग बीजेपी लीडर्स और मिनिस्टर खान प्राबी पार्टिसिपेट करिशे मार्च तो अटल उद्यान अदाबारी प्रा शुरू करिकिना भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र चलू बाकरी दे खतम करिशे रैली दे बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह प्रा मीडिया लोगुदे खोतक रहमय असम लगा मानु खान के पावरफुल मैसेज दिशे दुनिया प्रा इंडिया दो शांति देश एकता निशना जानी पाए होले भी कुनुबा प्रा अटैक करिले इंडिया दो बैक नकरबो कोइना करिशे। तिरंगा यात्रा से यही हम असम से हमारे जितने भी जो नागरिक हैं, जो सचेतन नागरिक हैं, वो पूरे भारत में यही मैसेज और आज पूरे भारत से विश्व को एक मैसेज जा रहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ऑपरेशन सिंदूर से आज हमारे भारत माता की सैकड़ों माताओं के सर का खून का जो उनके मांग का सिंदूर, उनके कोख का उजड़ने नहीं दिया गया है और जो पहलगाम में हुआ था उसका बदला लिया गया है। सो हम शांति प्रिय हैं, लेकिन हमें छेड़ो मत। हमें हमारे देश में यदि आतंकवाद करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। पूरे भारत, असम के लोग निकलकर, गुवाहाटी के लोग निकलकर तिरंगा के नीचे हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत हैं। कर्नल रविंद्र रिटायर्ड पाबी रैली दे पार्टिसिपेट कृषि और ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन बितोर दे कंप्लीट कृषि को गिना खुशी जनाइशे कुंदो प्रदेश तक एडवांसमेंट दो दिखी बोले पारे। बहुत खुशी है। अभी देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है 3 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया, हमारा जीत हुआ है, तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकता है। बहुत खुशी की बात है। और ये है जो इस बार हमने एक नया तरीका सिखाया पूरा दुनिया को। हम दुश्मन को हमला करने के लिए उनका बॉर्डर क्रॉस करना ज़रूरी नहीं है, वो हम अपना देश में बैठ के टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम यहीं से रॉकेट मारा और जो हमारा टारगेट, पहला दिन 9 टारगेट, उसके बाद 31 टारगेट था, सभी को हमने न्यूट्रलाइज किए हैं। अब इसीलिए इन्होंने सीज फायर की है। ये गौरव का बात है। ये पहला बार ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ पर इस तरह का तिरंगा यात्रा हो रहा है, ये हमें खुशी हो रहा है। इसीलिए हम इतने, हमारा 80 साल उम्र है फिर भी आया हो, क्योंकि ये हमारे खातिर ही पूरा देश इज्जत दिखा रहा है। जय हिंद, जय हिंद। पंजाब अमृतसर इलिसिट मुदु खाइगिना मानु मुरिया लगा केस जाई थगिया दे वेडनेसडे दिन दे पुलिस पारो 2 जन मानु गे अरेस्ट कृषि डीआईजी बॉर्डर रेंज सदेंद्र सिंह प्रा कृषि के इटा तक 21 मानु मुनिगिना से और इटु केस नगो ओपोरे 18 एक्यूज असे और 16 गे दुरिगिना से। देखिए, इसमें जो मजीठा में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, इसमें 21 मौतें हो चुकी है, वेरी अनफॉर्चुनेट। और 18 लोग इसमें नॉमिनेट थे, 18 में से 16 हमने पकड़ लिए हैं। इसमें से आज हमने 2 लोग जिन्होंने दिल्ली से ये सप्लाई की थी, जिसमें कल 600 लीटर पकड़ी भी गई है मेथनॉल, वो इस कंपनी से आ रही थी, तो उनको भी आज दिल्ली से हम पकड़ कर लेके आ रहे थे। सर, और कहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई? गिरफ्तारियाँ 2 लुधियाना से हुई हैं, 2 दिल्ली से हुई हैं, बाकी हमारी सारी अमृतसर रूरल में ही हुई है। सर, जो मेथनॉल है वो कहाँ से बरामद की गई, जो बड़ी मात्रा में की गई? वो कल, जैसे आपको मालूम ही है कि वो जो इन रूट हो रही थी दिल्ली से अमृतसर की तरफ, तो रास्ते में हमारे एसएसपी पटियाला और जो एक्साइज के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मिलके वहाँ उसको ट्रक को ढूंढा और वहाँ पटियाला में वो रिकवरी हुई है। सर, इसका किंग पिन कौन था और कब से ये? देखिए, किंग पिन साहब सिंह है, जिसने पहले जो 50 लीटर मेथनॉल दी थी, जिसकी वजह से ये सारी डेथ्स हुई हैं, और उसके बाद ये 600 लीटर भी उसने ही सप्लाई की थी। अब ये और कितना पीछे से कर रहा है, क्योंकि अब ये पकड़ा गया, हमारी गिरफ्त में है। अब सारा इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितना भी टेक्निकली भी निकाल सके, और इसकी इंटरोगेशन के बाद भी जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो आगे लेके आएंगे। सर, एक औरत भी पकड़ी है, नरेंद्र हाँ, कौर, उसका? नरेंद्र कौर भी, वो भी अपने गांव में शराब सप्लाई करती थी, और इसी शराब की वजह से उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, लेकिन वो अक्यूज्ड है, उसको भी अरेस्ट किया गया।
सर इसका क्या हाँ, जंडियाला में पिछले कुछ दिन पहले एक दुकान के ऊपर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में जो दुकान में एक बच्ची काम कर रही थी वो इंजर्ड हो गई थी। उस दुकान वालों को पहले एक्सटॉर्शन कॉल आई थी और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की थी। ये जोबन बिल्ला नाम का एक गैंगस्टर है, उसने अपने आदमियों को बेच के कराई थी और उसमें से जो 2 अक्यूज थे, 3 लोग आए थे, 2 पहले पकड़े गए और आज तीसरा जो बिल्ला नाम का एक गैंगस्टर है जिसने फायरिंग की थी, जब पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करने के बाद वो इंजर्ड हो गया, बुरी तरह से जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेके गया। भुवनेश्वर कुटक पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्ता सिंह पर 4 साल बच्चा माइनर एकजन किडनैप हुआ पर मीडिया लोगों खोता करिसे तादे सिंह पर कुछ कि ट्यूसडे दिन पुलिस लोगों माइनर बच्चा एकजन किडनैप हुआ खबर पाइसे बोही शाही एरिया दे इतु लगा ओपर डिटेंशन मैकेनिज्म दो जुटी एक्टिव करिसे और एक्यूज के अरेस्ट करिलुसे पुलिस पर बच्चा गिबी बाल पर पचा बोले पाइसे को किना करिसे। भुवनेश्वर में कल भोई शाही शहीद नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 4.5 वर्ष के बच्चे को किडनैप करने की खबर हमें करीब 6 बजे लगी थी शाम को। चूंकि बच्चे का किडनैप एक बहुत ही संवेदनशील घटना है, कमिश्नरेट पुलिस ऐसे मामलों में इमीडिएटली अपना रिस्पांस और डिटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिव करती है, जो कि कल किया गया। इमीडिएटली हमने अपने जितने भी फील्ड एसेट हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सारी जगहों पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों पर अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया गया और बस्ती में हमारा जो नेटवर्क है बस्ती में उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने करीब 3 घंटे के भीतर उसको लड़के को स्पॉट कर दिया। अक्यूज्ड पहले पकड़ लिया गया और कुछ देर बाद एक यहाँ की बस्ती से बच्चे को भी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों में ऐसी 3 घटनाएं आई थी जहां बच्चे को किडनैप किया गया। इसके पहले वाली घटना में रैंसम के लिए किडनैप था, उसके पहले बच्चा चोरी का केस था और ये भी किडनैप है, कुछ कंपेल करने के लिए किडनैप है। तो इन सारे घटनाओं में पुलिस ने इमीडिएट रिस्पांस किया था और अपने सभी जो मैनुअल और जो इक्विपमेंट, वो सारे के सारे अपने साधन लगाए थे। कई टीमें की थी, सारे साधन लगाकर इसको स्विफ्ट एक्शन किया गया था, जिसके जरिए हम बच्चों को सेफ बचा पाए थे। इसके पहले जो एक केस जिसमें खुर्दा से हमने पकड़ा था, उसमें रैंसम के लिए था, बच्चे की जान को खतरा था, इसलिए हमने FIR करने के पहले ही उसको बच्चे को रेस्क्यू किया। इसमें हमें FIR हुई थी, 6 बजे FIR हुई, क्योंकि पर्सन नोन था, उनको बंगलौर में कहीं मिला था, जो बच्चे के घर के लोग हैं उनको बंगलौर में यह आदमी मिला था। इसका नाम अभिषेक दिगाल है। तो आदमी नोन था, लेकिन बाकी इसका कम्युनिकेशन वगैरह बंद था, पता वता कहाँ होगा, बंगलौर में कहाँ रहता है, उस सब को हम लोगों ने तुरंत सर्टेन करके बच्चे को रेस्क्यू किया। और हमारी प्रतिबद्धता भुवनेश्वर के निवासियों के लिए, भुवनेश्वर के नागरिकों के लिए, इस तरह के सारी चीजें जहां उन पर कोई विपत्ति होगी, उनको कोई जरूरत होगी, इसके लिए हम स्विफ्ट एक्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1 आदमी अरेस्ट हुआ है। इसका मोटिव था, ये जिस तरह के कानून में लिखा है किडनैप, तो किडनैप 3-4 तरह का होता है। एक किडनैप किसी पर्पज के लिए, बेगिंग वगैरह के लिए, एक होता है कि रैंसम मांगने के लिए, तीसरा होता है कोई किसी चीज को कंपेल करने के लिए, बाध्य करने के लिए। ये बच्चा किडनैप किया गया था कि इसके थ्रू इसके पेरेंट्स को कोई काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर दे केराकुड़ा हिल दे सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर एंटी नक्सल ऑपरेशन कोरिया दे आर्म्स और एमिनेशन काम पाइसे इतुलगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अप्रैल 21 पर मे 11 तक थगिशिको किना जानी पाइसे ऑपरेशन लगा ऑपरेट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अगर डायरेक्टर जनरल गैनेन्द्र प्रताप सिंह प्राकुशी की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर 31 मार्च 2026 तक दे नक्सल सब सपा कुरी दिबो क्वा लगा कमिटमेंट दे ताई खान पर काम दो कुरिया से कोई किना। ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन किया गया है। अमित शाह जी ने जिस तरह से अनाउंस किया है कि मार्च 26 तक हम पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे आतंकवाद, इस माओइज्म को, आप क्या कहना चाहें? आपने भी एक प्रण लिया है जिसका भी 31 मार्च 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी ने
प्रण लिया है उस प्रण के प्रति हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस के साथ मिल और अन्य केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो माननीय मंत्री जी का प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करेगा। ऐसा मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ये करेंगे। कितना बड़ा ऑपरेशन था, थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। कितने नक्सलियों को हमने मारा, कितने इनामी थे और कितने बड़े नक्सली जो अभी भी वांटेड हैं बचे हुए हैं? अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहाँ रिकवर कर पाएंगे, जोग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी हैं, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है चूँकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कितने इस ऑपरेशन को हमने नाम क्या दिया था और कितने फोर्सेस की मदद ली गई थी? अगर हम पूरे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इंजरीज कितने नक्सलियों को हमने अभी तक पहुंचा पाए हैं? और रिकवरीज की बात की जाए तो कितना अभी तक की रिकवरी हुई है? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ इतनी बड़ी रिकवरी? इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। माओइस्ट को अपनी तरफ से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? 31 मार्च 2026 देश जगह जगह सोपते इंडियन सोल्जर्स के सॉलिडारिटी दिबो और मार्टिर्स कान के रिस्पेक्ट दिबोले कारणे पेट्रियोटिक रैली जाई थगेदे वेस्ट बंगाल प्राबी देश लोगों मिलीगिना मे 17 और 18 लगा शाम 3 बजे प्रा 5 बजे कारणे पेट्रियोटिक रैली दो थगी बोले ऐसे कोई गिना चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रा क्वेश्चन that our party is doing, yes, Saturday and Sunday from 3 o'clock to 5 o'clock. They will do, it is to give, pay the solidarity to the Jawans, and number 2, condolences for the brave Jawans who sacrificed their life for the country, the motherland. उसका परिवार कोई है तो उसको घर में जाके भी उसको श्रद्धांजलि निवेदन करेंगे। हम पॉलिटिकल ओर से बात को नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आज तक मैं कोई टिप्पणी भी नहीं काटा, मेरे को पार्टी को भी नहीं कहने दिया, गवर्नमेंट का साइड में से भी कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन देश को, जवान को श्रद्धांजलि और जो सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, जिंदगी चला गया, उसको तो श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। शहीद वीरদের सम्मान जानिए। देश पर टर्की और अजरबाईजान दे ट्रेवल नकरबले खोता करे समय चेयरमैन टूरिज्म कमिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुभाष गोयल प्रा खुशी की इतु बिशी अनफॉर्चुनेट असे कुदे टर्की गे अर्थक्वेक हुआ समय इंडिया प्रा बिशी मदद कृषि ताई खुशी की इंडिया प्रा डॉक्टर्स, डॉग स्क्वाड और मेडिकल स्क्वाड कान फाटाइसे और इतु ऑपरेशन डोज थगिसे विश्वास क्रिया नाय कि टर्की प्रा इनिगा कदम लुबो आमी खान लगा दुश्मन गे इमान तक मदद करबो कोइगिना तार पर आरो जनाइसे कि द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सब ट्रैवल एसोसिएशंस मिलेगिना टर्की और अजरबाईजान बॉयकॉट क्रिया पर सपोर्ट क्रिया से कोइगिना। देखिए, पहले तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी की तरफ से मैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं कि ऑपरेशन संदूर बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, और वहाँ की जनता ने हमें चीयर करा था। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है
और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अज़रबैजान का, क्योंकि अज़रबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। और सर किस तरह का सपोर्ट, जैसे ट्रैवल एसोसिएशन कंट्री जो है के लोग इस उसमें कंट्री के साथ खड़े हुए हैं? सर ट्रैवल एसोसिएशन, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है ऐसे मौके पर जो है इतना करने मानिए साइड हॉर्नबिल टीवी।